من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری گفتگو اس مطلب میں تھی کہ معاطات میں متعاطیین جب لین دین کرتے ہیں تو قصد تملیک کے ساتھ کرتے ہیں اور ملکیت آ جاتی ہے، چونکہ دونوں متعاطیین اپنا رابطہ مملوک شے سے اٹھا لیتے ہیں اور یہ ملکیت آ جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد کچھ لوگوں نے یہ اشکال جو کیا تھا، ہماری گفتگو اس موضوع پہ ہے، توجہ رہے کہ ہم نے محقق ثانی کے نظریے کو قبول کیا کہ معاطات میں ملکیت پہلے سے آ جاتی ہے، اور پھر اس مطلب پہ جو اقسام بنے تھے کہ بعض لوگ ابتدا سے لزوم کے قائل ہیں، بعض لوگ تراضی پہ دلالت کرنے والے لفظ کے ذریعے سے ابتدا سے ملکیت کے قائل ہیں، اور بعض لوگ جب تصرف یا نقص وارد ہو تب سے ملکیت کے قائل ہیں۔ ہم نے تائید کیا محقق ثانی کے نظریے کو یہ کہتے ہوئے کہ اس کے لزوم کے اوپر ابتدا سے ہمارے پاس دلیلیں ہیں۔ 9 دلیل ذکر کریں گے، 8 دلیل ذکر کریں گے۔ پہلی دلیل اصالت اللزوم کی، استصحاب جاری کریں گے کہ معاطات میں لین دین کرنے کے بعد ملکیت حاصل ہو گئی ہے۔ اب اگر کوئی قصد رجوع کر رہا ہے تو آیا اس قصد رجوع سے ملکیت زائل ہو جائے گی؟ چونکہ حصول ملکیت کا یقین ہے اور رجوع کی صورت میں ہم شک کریں کہ ملکیت زائل ہوئی یا نہیں زائل ہوئی، تو ہم کیا کریں گے؟ وہی جو ملکیت حاصل ہوئی ہے جس کا یقین ہے، شک کی صورت میں ابقاء ماکان کرتے ہوئے اس یقینی مطلب کو کھینچ کر کے لائیں گے اور یہ کہیں گے کہ قصد رجوع کی صورت میں بھی ملکیت پائی جاتی ہے۔ لوگوں نے بیچ میں ایک شوشہ چھوڑا اور یہ کہا کہ جس ملکیت کی آپ بات کر رہے ہیں وہ ملکیت 2 فرد میں سے کسی ایک میں ہے، یعنی ایسی کلی ہے کہ جس کے 2 فرد ہیں، ایک فرد جائز ملکیت جائز اور دوسرے فرد مستقر یعنی ملکیت مستقر اور لازم۔ جب آدمی رجوع کرے گا تو اس صورت میں رجوع کی صورت میں جو ملکیت متزلزلہ تھی وہ تو بالکل سے ختم ہو جائے گی، مگر ملکیت مستقر اس کے سلسلے میں پہلے ہی سے مشکوک الحدوث تھا، اور جب رجوع کرے گا تو وہ مشکوک الحدوث اور پختہ ہو جائے گا، لہٰذا نہ اس فرد پہ ملکیت نہ اس فرد پہ، یعنی وہ بھی ابقاء ماکان والا یہاں پہ بھی نہیں ہے کیونکہ مشکوک الحدوث ہے۔ اگر یقینی الحدوث ہوتا تو آپ استصحاب کر کے اس کو شک کی صورت میں، رجوع کی صورت میں، شک کی صورت میں آپ اس کو استصحاب کر سکتے تھے۔ لہذا جب دونوں فرد نہیں بچا تو اصالت اللزوم کس چیز کے اوپر آپ جاری کر رہے ہیں؟ فرد غیر لازم ختم ہو گیا رجوع کی صورت میں، فرد مستقر جو آپ ملکیت کا کہہ رہے تھے وہ مشکوک الحدوث تھا، یقینی نہیں تھا، لہٰذا اصالت اللزوم اور اصالت استصحاب جاری نہیں ہوگا۔ ہم نے جواب دیا کہ اولاً تو یہ جو جواز اور لزوم کی بات آپ کر رہے ہیں، ملکیت کے 2 پہلو جو ذکر کر رہے ہیں، یہ کہاں سے آئے؟ اصل جو ہے یہ ہے ملکیت کا حدوث، وہ یقینی ہے، اور یہ جو افراد جو آپ ذکر کر رہے ہیں یہ حکم شارع سے ہے یا حکم مالک سے ہے؟ اگر حکم شارع سے ہے تب بھی بات نہیں بنتی، اور اگر حکم مالک سے ہے تو مالک کے قصد کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کی 3 صورت قصد کی ہو سکتی ہے، مثلا معاملہ مکمل طریقے سے بیع و شراء کے ذریعے سے، بیعتوں و اشتراطوں کے ذریعے سے جو عقد لازم ہوتا ہے وہ انجام پائے، اور اس کے بعد مالک یہ کہے، مالک اصلی مال کا کوئی بھی دونوں طرف سے یہ کہے میری نیت تو ملکیت کی نہیں تھی، یا میری ملکیت کی نیت کی بجائے ملکیت متزلزلہ اور جائزہ کی نیت تھی، یا یہ کہ میں نے تو کوئی ایسی نیت ہی نہیں کی تھی، تو ان سب کو اس سے نہیں سنا جائے گا۔ یہی صورتحال یہاں پہ بھی ہے۔ معاطات میں جس وقت لین دین کیا جا رہا ہے تو قصد تملیک کے ساتھ ایک دوسرے کو دے رہے ہیں نا،
अब जब दे चुके हैं तो उसके बाद ये कहें कि मैंने तो कोई कस्द ही नहीं किया था, या मैंने कस्द मिल्कियत जायज़ा और मुतज़ल्ज़िला का किया था, या मैंने कस्द लुज़ूम का किया था, ये सब कहने से कोई जो है सुनवाई नहीं होगी। चूँकि मुआतात में मिल्कियत हासिल हो चुकी है, उसी मिल्कियत को हम क्या करेंगे, रुजू की सूरत में शक पैदा होने की सूरत में माकान में जो यकीनी मिल्कियत का है उसी को इस्तिसाब करेंगे। और फिर उसके बाद दूसरी बात ये कही, अल्फाज मैंने कहा था कि बहुत ज़्यादा है, आज भी जो है मुमकिन है तत्बीक करने में थोड़ा सा परेशानी हो। दूसरी बात एक मरतबा और सुनिए, वो ये है कि हमने अलैकुम ये कहा कि इजारा हो, मुसालहत हो, अगर बिला एवज मुसालहत कर रहे हैं तो शारे की तरफ से हुक्म ये है कि ये लुज़ूम आवर है। लेकिन हिबा में अगर बिला एवज दिया गया है तो शारे ने कहा है कि ये जो आपने हिबा किया है बज़ाहिर तमलीक है, लेकिन ये तमलीक मुतज़ल्ज़िल है। तो ये जो हुक्म लगा रहा है शारे की तरफ से, जो हुक्म आ रहा है वो मिल्कियत के ऊपर नहीं है, बल्कि मिल्कियत हासिल होने के बाद उस मिल्कियत के हुसूल का जो सबब है वो सबब कभी कमज़ोर है, कभी सबब कवी है। अगर आपने बै व शरा किया, बेतो व इश्तरेतो किया है, नक़ल समन व मुस्मन मुंतकिल हो गए हैं, ये क्या है, ये सबब कवी है। यानी यहाँ पे आपको रुजू करने का, फस्क करने का हक नहीं है। लेकिन अगर आपने मुआतात की, अगर आपने हिबा किया है तो हिबा अगर बिला एवज किसी को दिया है तो वो शारे कह रहा है कि आपने ये जो मिल्कियत बनाई उसे दिया है, आप चाहे तो इसे वापस ले सकते हैं। वाज़ेह है। यही सूरत मुआतात में भी है। मुआतात में और अक़द सही बेतो व इशरतों में, दोनों में फ़र्क यही है, यहाँ पे भी मिल्कियत है, वहाँ पे भी मिल्कियत है, मगर जो बेतो व इशरतों के ज़रिए से अक़द सही आपने अंजाम दिया है, यहाँ क्या है, ये चूँकि सबब कवी है लिहाजा रुजू का हक़ नहीं है, फस्क करने का हक़ नहीं है। मगर मुआतात में जो कह रहे हैं वो ये है कि मुमल्लिक जो आपका जो मुमल्लिक है, सबब है, ये कमज़ोर है, चूँकि कमज़ोर है लिहाजा रुजू का हक़ है। हम ये कहेंगे, ये जवाब के तौर पर, जैसे बै सही में रुजू का हक़ नहीं है, फस्क करने का, रुजू करने का हक़ नहीं है, इसी तरीके से मुआतात में भी नहीं है। क्यों? क्योंकि असल जो मिल्कियत है वो लेन देन करने के बाद हासिल हो गई। ये तो शारे सबब के मुमल्लिक और कमज़ोर और मजबूत होने के बारे में बात कर रहा है। मुसब्बब जो हुसूल मिल्कियत है वो मुआतात करने के बाद हासिल हो गई। अब शक कर रहे हैं कि आया रुजू की सूरत में वो जो मिल्कियत हासिल हुई थी यकीनी तौर पर वो ख़त्म होगी या ख़त्म नहीं होगी। क्या करेंगे? इब्का व माकान इस्तिसाब करेंगे, मामला दुरुस्त हो जाएगा। अच्छा, और ये कल के दर्स की बातें हैं। और ये जो कहा कि शारे की तरफ से ये लुज़ूम और अदम में लुज़ूम की बात आती है, तो हम ये कहेंगे कि ये दुरुस्त नहीं है। इससे पहले हमने एक कायदा, जो हमने नहीं बल्कि शेख जाफ़र कबीर की तरफ से, काशिफुल ग़िता की तरफ से पहला कायदा जदीदा लाजिम आ रहा था, हम वहाँ पे हमने उसकी तरदीद कर दी थी। मुआतात में ये कह दिया था कि बाज़ 5 मिसालें ज़िक्र की थी कि बाज़ जगह उक़ूद ताबे क़ुसूद न हो, शारे की तरफ से छूट है। वैसे ही मुआतात में भी नीयत क्या है? तमलीक की। मशहूर हुक्म क्या दे रहे हैं? इबाहा का। उक़ूद ताबे क़ुसूद ना हो चलेगा, मगर आज हम उसी कायदे को तमस्सुक कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि शारे को हक़ नहीं पहुँचता जब वो क़स्द तमलीक के साथ लेन देन कर रहे हैं, तो तमलीक का क़स्द ना हो, शारे उसे मुतज़ल्ज़िल करार दे। उक़ूद ताबे क़ुसूद होना चाहिए, शारे की तरफ से हुक्म लगाना। अगर लुज़ूम का क़स्द किया है, शारे तज़ल्ज़ुल का हुक्म लगाए, या तज़ल्ज़ुल का क़स्द किया, शारे लुज़ूम का हुक्म लगाए, ये दुरुस्त नहीं है। उक़ूद ताबे क़ुसूद होना चाहिए। तो अब कोई हमारे ऊपर ये इश्काल कर सकता है कि आपने जब मुहक़्क़िक़
शेख जाफर कबीर को जवाब देने के लिए कहा था, तब तो ये कहा था कि उकूद ताबे कुसूद ना हो चलेगा। आज फिर उसी कायदे के ऊपर आप तमस्सुक करते हुए कह रहे हैं कि उकूद ताबे कुसूद होना चाहिए। लिहाजा मुआतात में क़स्द तमलीक के साथ जो लेन देन हुआ है, अगर शारे की तरफ से उसके ऊपर तज़ल्ज़ुल का हुक्म लगाया जाए तो खिलाफ क़स्द मुताअतियैन है, और अगर मुताअतियैन ने पहले से रुजू का जवाज का हुक्म लगाया है, शारे उसके ऊपर लुज़ूम का हुक्म लगाए, तो ये भी उकूद ताबे कुसूद नहीं हो रहे हैं। आप इस कायदे से क्यों तमस्सुक कर रहे हैं? तो इसका जवाब ये दे रहे हैं कि मुआतात की जहाँ तक बात थी, हम वहाँ पे मदद कर रहे थे उन कायलीन की जो ये कह रहे थे कि मुआतात में मिल्कियत आ जाती है, और वहाँ पे हम ये कह रहे थे कि मशहूर का नजरिया है कि इबाहा आता है, हालांकि क़स्द तमलीक दोनों ने किया था। हम इस कौल की ताईद के तौर पर इस उकूद ताबे कुसूद के मुखालिफत की बात कर रहे थे। आज मसला इसका नहीं है, आज मसला मुतलक मिल्कियत का और लुज़ूम और जवाज का है, यानी दो बहस है। एक ये कि मुआतात में लेन देन करने के बाद मिल्कियत आई, और दूसरी बहस ये है कि इस मिल्कियत के बाद आया ये मिल्कियत लुज़ूम है या जवाज है, यानी दूसरे लफ्ज़ों में रुजू करने वाला अगर रुजू करे तो वो मिल्कियत ज़ाइल हो जाती है या लाजिम बाकी रह जाती है। यानी इस बहस की ज़रूरत है, लिहाजा हम इस कायदे के को यहाँ पे तमस्सुक कर रहे हैं। अच्छा, और दूसरी बात ये कही गई थी कि मालिक की तरफ से रुजू का कस्द या अदम रुजू का कस्द या कोई कस्द ना हो, इस बुनियाद पर हमने इसको ये कहा था कि ये वाज़हुल बुतलान है। जब मुआतात में लेन देन हुआ है तो जिस वक्त लेन देन हुआ है किस चीज़ की नीयत थी? कस्द तमलीक थी, और उसके बाद मामला हो जाने के बाद मालिक की तरफ से, मालिक असली की तरफ से ये दावा ठोक दिया जाए कि मैंने तो रुजू की नीयत से, जवाज की नीयत से कस्द लुज़ूम नहीं किया था, ये उसको नहीं सुना जाएगा। क्यों नहीं सुना जाएगा? तीन सूरत पैदा होती है। अगर ये कहे कि मैंने रुजू करने की नीयत से तमलीक किया था तो ये क्या हो जाएगा? इसके मिल्कियत जायज़ा होगा, रुजू करने का हक होगा। और अगर कस्द लुज़ूम के नीयत से लेन देन किया था तो फिर ये क्या सबब हो जाएगा? मजबूत हो जाएगा, इसमें कस्द रुजू नहीं होगा। और अगर ये कहे मैंने कोई कस्द ही नहीं किया था तो फिर क्या हो जाएगा? लेन देन के वक्त मिल्कियत हासिल होगी। लुज़ूम और अदम लुज़ूम का मसला इस्तिसाब के ज़रिए से हम हल कर लेंगे। तो दोनों पहलू काबिल इश्काल है। वो ये है कि मुआतात में, एक मरतबा इस आखिरी बात को सुने, मुआतात में लेन देन करने के वक्त कस्द तमलीक के साथ लेन देन होता है। मैं शेख अंसारी ये कह रहा हूँ कि शेख मुफीद की तरह से मिल्कियत ही नहीं बल्कि अव्वल से ही मिल्कियत लाजिम हो जाती है। ये जो मिल्कियत लाजिम हो, लुज़ूम जो आता है, कहाँ से आता है? पहली दलील, वो पहली दलील क्या है? असालतुल लुज़ूम। वो क्या कहा गया कि जहां जहां मिल्कियत आती है असल ये है कि वो मिल्कियत क्या है? मिल्कियत लाजिमा हो। मुआतात में लेन देन के वक्त कस्द तमलीक के साथ लेन देन हुआ। अब हम शुबहा करें कि ये मिल्कियत क्या नाम है, लाजिम है या लाजिम नहीं है। शुबहा अगर पैदा हो तो आप क्या करिए? असालतुल लुज़ूम जारी करिए हर उस जगह पे जहां पे मिल्क पाई जाती है। इबारत पे तवज्जो करें। कहाँ तक पहुंचे थे? उससे थोड़ा सा पहले वह इनकान सानी। और अगर हम ये कहें कि मुआतात में लेन देन करने के बाद मिल्कियत हासिल हुई, अब शारे की तरफ से इस मिल्कियत के लुज़ूम और अदम लुज़ूम की बात कही जा रही है। वह इनकान सानी लज़िमा इम्ज़ा उश्शारे अल अक़दा अला गैर मा क़सदहुल मुनशे। मुनशे यानी ईजाद करने वाला, यानी वही मुताअतियैन ने जो कस्द किया उसके खिलाफ शारे उसकी तायीद कर रहा है। अगर जवाज की बात कर रहा है तो हम कहेंगे कस्द तमलीक किया है, आप इसको जवाज लुज़ूम के बजाय जवाज कैसे कह रहे हैं? वह बातिल फिल उक़ूद, और ये बात पहले कही जा चुकी है। उक़ूद में ये बात बातिल है कि मुखालिफ नहीं होना चाहिए। कस्द और
इंशा में कस्द की जो किया है मुतातियन ने वो, और जो शारे हुक्म लगा रहा है अक्द जो कर रहा है, वो दोनों में मुखालिफत नहीं होना चाहिए, ताबे क़ुसूद होना चाहिए। लिमा तक़द्दम मिन अन्नल उक़ूद अल मुसहहा इंद शारे, शारे के नज़दीक जो उक़ूद सही हैं वो वही हैं कि ततबउल क़ुसूद, जो मुतातियन के या ईजाब और कबूल करने वाले के कस्द के ताबे हों। व इन अनकनल कौलो बितखल्लुफ हुना फी मसअलत मुआतात, अगरचे ये कौल उस कौल के मुखालिफ में जा रहा है जो हम मुआतात में कह चुके हैं। मुआतात में जब ये बात आई थी ना कि उक़ूद ताबे क़ुसूद होना चाहिए, कायदे जदीदा लाजिम आता है कि मशहूर कहने की इबाहत तसर्रुफ और कस्द क्या है, तमलीक का है, ये तो उक़ूद ताबे क़ुसूद नहीं हुए। तो हमने इसका जवाब ये दिया था, नहीं उक़ूद का ताबे क़ुसूद होना ज़रूरी भी नहीं है। हर एक हल्ली जवाब दिया था, 5 अदद मिसाल दी थी कि नीयत करके नीयत में महर की वक्त मुकर्रर न किया जाए, यानी डेट दिन मुअय्यन न किया जाए और सेगा पढ़ दिया जाए तो वो नीयत से इनक़िता की मुतआ की हो जाएगा अक़्द दाइमी। तो कैसे वहाँ पे उक़ूद ताबे क़ुसूद नहीं, वैसे ही मुआतात में चलता है। तो हमने कहा था ये जो कौल जिक्र किया था सिर्फ इसलिए जिक्र किया था कि मशहूर के नज़रिए की ताईद कर सकें कि वो कह रहे हैं कि हासिल हो रहा है क्या, इबाहतुत तसर्रुफ, क़स्द मुतातियन क्या है, तमलीक। यहाँ दोनों में मुखालिफत पाई जाती है, मुखालिफत पाई जाए तो इस कौल मशहूर की ताईद पर हमने उक़ूद ताबे क़ुसूद की मुखालिफत की थी। आज हम उसी उक़ूद ताबे क़ुसूद को पेश कर रहे हैं। वही अमकनल कौलो बितखल्लुफ, अगरचे खिलाफ होना, किस चीज़ का खिलाफ होना, उक़ूद ताबे क़ुसूद ना हो, इस कौल का कायल होना मुमकिन है होना फी मसअलतिल मुआतात, मसले मुआतात में हम ये कह चुके कि मुखालिफत हो सकती, कोई हरज नहीं है। बिनाअन अला मा ज़करना साबिक़न, जैसा कि हमने इसमें साबिक में जिक्र किया था। ये क्यों वहाँ पे तखल्लुफ की बात कही थी, इंतिसारन लिल क़ाइल बिअदमिल मिल्क, तवज्जो करें इस इबारत के ऊपर। ये हमने मा ज़करना साबिक़न में उक़ूद ताबे क़ुसूद ना हो ये बात क्यों कही थी, किस लिए कही थी, इंतसारन मदद कर रहे थे, मददगार हो रहे थे, तायद कर रहे थे किनकी, लिल क़ाइल बिअदमिल मिल्क, मशहूर मुआतात में मिल्कियत के कायल नहीं हैं और मुतातियन क्या कर रहे हैं, तमलीक का कस्द कर रहे हैं। उस तमलीक में और इस हुसूल में दोनों में तखल्लुफ है। बात वाज़ेह हो रही है नहीं। सारे के सारे मशहूर का नज़रिया क्या था कि मुआतात में मिल्कियत हासिल नहीं होती बल्कि सिर्फ इबाहतुत तसर्रुफ आता है, और उधर से मुतातियन ने कस्द किस चीज़ का किया है, मिल्कियत का किया है, तो ये उक़ूद ताबे क़ुसूद होना चाहिए। हमने कहा ये तखल्लुफ हो सकता है और इसकी तखल्लुफ के लिए 5 अदद मिसालें दी थी। ये सिर्फ इसलिए वहाँ पे बात कही थी इंतिसारन लिल क़ाइल बिअदमिल मिल्क, जो मिल्कियत के कायल नहीं यानी मशहूर उलमा, उनकी तायद और उनकी मदद करते हुए हमने मुखालिफत का कौल इम्कान पजीर किया था। वो क्या जी, मिन मन ए वजूब इमज़ाइल मुआमलातिल फ़िअलिया अला तिब्क़ क़ुसूदिल मुताअतियन, हमने ये कहा था कि ममनू है कि वो मुआमलात जो फ़िअली यानी मुआतात जो हो रहे हैं उनमें भी लाजिम है कि जैसे मुताअतियन जो कस्द किए हैं वही होना चाहिए, नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है। हमने इस मतलब को समझाने के लिए हमने क्या कहा था कि मुआमलात फ़िअली और मुआमलात लफ्ज़ी में फ़र्क है। वो फ़र्क क्या है, वहाँ पे कस्द तमलीक के साथ मामला हो रहा है, बेतो इश्तरा तो हो रहा है, लुज़ूम आ जाता है, मगर मुआमलात फ़िअली में हमें पता नहीं है। एक चीज़ का पता है कि कस्द तमलीक और तसल्लुत के साथ लेन देन करते हैं, मगर हासिल क्या होता है मशहूर के नज़रिए की बुनियाद पर, इबाहा का, उसमें मुखालिफत जो है पैदा हो कोई हरज नहीं। हमने ये कहा था मिन मन ए वजूब इम्ज़ाइल मुआमलातिल फ़िअलिया, शारे की तरफ से वो मुआमलात फ़िअली वही मुआतात की इम्ज़ा ममनू है यानी वाजिब, मन ए वजूब इम्ज़ाए मुआमलात फ़िअली अला तिब्क़ क़ुसूदिल मुताअतियन, जैसा मुताअतियन ने कस्द किया है उसी के मुताबिक मुआमलात हों ये लाजिम नहीं है।
मैं ज़ाहिरन वाज़ेह नहीं कर पाया, तवज्जो करें। मुआतात कौली और मुआतात कह रहा हूँ, बुयू ए फ़ेली और बुयू ए कौली। कौली में हमने कहा कि क्या है, बेतो और इश्तरेतो हुआ, कसद तमलीक करें न करें, लेन देन किया है, सेगा इजारी किया है, मिल्कियत आ जाएगी। लेकिन जब मुआतात कर रहे हो तो कसद तमलीक के साथ ही मुआतात कर रहे हैं, मगर मशहूर ने नजरिया क्या पेश किया है कि इबाहतु तसर्रुफ आएगा। यहाँ कसद तो तमलीक का है और हुक्म क्या आ रहा है, इबाहा का। दोनों में मुतजाद पाया जा रहा है। हमने कहा कि ज़रूरी नहीं है कि मुआमलात फ़ेली भी मुआमलात अमली असली की तरह से उनके अंदर मुताबिकत पाए, ये लाजिम नहीं है। लाकिन्नल कलाम फी काइदतिल लुज़ूम, यानी यहाँ, लेकिन अब जो हम कहने जा रहे हैं वो ये है कि लाकिन्नल कलाम फी काइदतिल लुज़ूम फिल मिल्क, आया मिल्क में लुज़ूम है या नहीं है, यहाँ जो गुफ्तगू हो रही है, तशमलुल उकूद ऐज़न, यहाँ पे उकूद वाले को भी शामिल होगा। वो इस तरीके से कि यहाँ पे लाजिम है कि हम बहस करें मुआतात में लेन देन करने के बाद जब मिल्कियत का कस्द के साथ लेन देन किया है। आप ये कह रहे हैं कि मिल्कियत दो फर्द रखती है, एक फर्द जायज़ मुतज़ल्ज़िल, दूसरी फर्द क्या है, लाजिम और मुस्तकर। हम ये कहेंगे कि चाहे लाजिम हो चाहे मुतज़ल्ज़िल हो, मिल्कियत हासिल हुई। जब मिल्कियत हासिल हुई है तो उसी के ऊपर इसालतुल लुज़ूम जारी करेंगे। लाकिन्नल कलामो फी काइदतिल लुज़ूम, लेकिन यहाँ जो हम इसालतुल लुज़ूम जारी करें, जिसको हमने अस्ल वकलाई कहा और ये कहा कि मुआतात में उर्फ की और वकला की बिना यही होती है कि तमलीक के कस्द से लेन देन करते हैं, उसी को हम इस्तेलाल करेंगे और उसी को जारी करेंगे। वबिल जुमला फला इश्काल फी असालतिल लुज़ूम, दोबारा घूम करके आ रहे हैं। पहली दलील जो हमने 8 दलील पेश करने के लिए कहा है कि मुआतात में मिल्कियत तो है ही, इब्तिदा से लुज़ूम आता है, इसके ऊपर पहली दलील हमारी क्या है, असालतुल लुज़ूम है, असालत इस्तिसाब है। वही दोबारा दोहरा रहे हैं, वबिल जुमला फला इश्काल फी असालतिल लुज़ूम फी कुल्ल अक़दिन शुक्क फी लुज़ूमिही शरअन। जो मुआतात के जरिए से लेन देन हुआ है, कस्द तमलीक है, उर्फ और उकला इसे क्या कहते हैं कि मिल्कियत हासिल हो गई। ये जो मिल्कियत हासिल हो गई है, ये मिल्कियत लाजिम है या लाजिम नहीं है, हमें शक हो रहा है। क्यों शक हो रहा है? क्योंकि मालिक में से किसी एक ने रुजू किया है। रुजू करने के ऊपर आपको शक हो रहा है कि ये मिल्कियत है या नहीं है। पहले मिल्कियत यकीनन हासिल हुई थी, उर्फ भी कहते हैं, उकला भी कहते हैं, इनका कस्द तमलीक भी था। वो जो मिल्कियत हासिल हुई है यकीनी तौर पर हासिल हुई है, रुजू की सूरत में शक पैदा हो रहा है। हर जगह जहां मिल्कियत पाई जाए यकीनी तौर पर और शक हो कि वो जायल हुई या जायल नहीं हुई, क्या करेंगे, असालतुल लुज़ूम जारी करेंगे। फला इश्काल फी असालतिल लुज़ूम फी कुल्ल अक़दिन, हर उस अक़द में जहां पे शुक्क फी लुज़ूमिही शरअन, शरअन उसके लुज़ूम लाजिम होने में हमको शुबा हो रहा है कि मुतातियन ने तो कस्द तमलीक के साथ लेन देन किया है, मिल्कियत हासिल हुई। आया शारे भी इसको लाजिम मानता है या लाजिम नहीं मानता है? हम क्या करेंगे, कहेंगे कि भाई मिल्कियत जो हासिल हुई थी वो यकीनी थी। शारे जो हुक्म लगा रहा है वो मुमल्लिक के लाजिम और लाजिम ना होने के ऊपर लगा रहा है। शक आपको मिल्कियत के हुसूल के बाद हो रहा है, उसके जवाल में। और ये जवाल में मैंने बार बार कहा, ये जवाल मिल्कियत में क्यों शक हो रहा है? क्योंकि कस्द रुजू, कस्द फस्क किया है अहदुल मालिकैन ने। वकज़ा लौ शुक्क फी अन्नल वाक़ि फिल खारिज हुवल अक़दुल लाजिम अविल जायज़। यहाँ पे एक बात और कहने की ज़रूरत है, वो ये है कि हालांकि तफसीली गुफ्तगू है कि शुबहात 2 किस्म के होते हैं, शुबहे मफ़हूमिया और शुबहे मिस्दाकिया। शुबहे मफ़हूमिया के मंशा और सरचश्मा क्या होता है? या नस मौजूद ना होने की वजह से शुबहा होता है, या नस तो है मगर एक दूसरी नस उससे तारुज़ और टकराव पैदा कर रही है, नतीजे में हमें पता नहीं चल रहा है कि ये इसकी हकीकत क्या है। या फुक़दान नस या तारुज़ नस
یا اجمال نقص، نص موجود ہے مگر اس نص سے ثابت نہیں ہو رہا ہے کہ لین دین کرنے کے بعد آیا لزوم کا حکم لگایا جائے یا نہ لگایا جائے۔ مثلا یہ جو روایت آئی ہے کنفرم نہیں ہے، یا ایک روایت مثلا کہہ رہی کہ لزوم کا حکم لگایا جائے، دوسری روایت اس سے ٹکرا رہی ہے، ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہاں پر لزوم کا حکم لگایا جائے یا نہ لگایا جائے، یہ اصلا نص ہے ہی نہیں۔ تو کہنے کی شبہات حکمیہ میں سرچشمہ شبہ یا فقدان نص ہوتا ہے، یا اجمال نص ہوتا ہے، یا تعارض نصین ہوتا ہے، لہذا شبہات حکمیہ میں ہماری ذمہ داری اور ہے۔ لیکن شبہ مصداقیہ میں کیا ہے؟ وہاں پہ شے کنفرم ہے، نص موجود ہے، مثلا اگر ایسا ہو تو لزوم، اگر ایسا ہو تو جواز، مگر وہ جو شے جس کے سلسلے میں شک ہو رہا ہے افراد خارجی کسی وجہ خارجی کی بنیاد پر ہمارے لیے کنفرم نہیں۔ مثلا اگر صیغہ مدت کے ذکر کے ساتھ پڑھا جائے تو متع ہوگا، اور اگر ذکر مدت کے ساتھ نہ پڑھا جائے تو نکاح ہوگا۔ ہمیں یہ تو دونوں کنفرم معلوم ہے، ابھی جو نکاح پڑھا گیا ہے اس میں ہمیں یہ ذکر ہمیں الگ سے پتہ نہیں چلا، کسی نے بتایا نہیں ہے کہ اصل مدت کا تذکرہ ہوا ہے یا نہیں۔ اگر ذکر ہوا ہے تو ہم کہیں گے یہ متع حاصل ہوا ہے، اگر نہیں ہوا ہے تو کہیں گے کیا ہے؟ یہ دائمی ہے۔ تو شبہ مصداقیہ میں جس کے اوپر حکم لگانا ہے اس کے سلسلے میں حکم شرعی مشخص ہے، معین ہے، مقرر ہے، واضح ہے، مگر جس جگہ پہ شبہ ہو رہا ہے وہ کنفرم نہیں ہے کہ یہ اس حکم کے مطابق ہوگا یا اس حکم کے مطابق ہوگا۔ یہاں پہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہر وہ عقد جہاں پر ملکیت پہلے سے حاصل ہو گئی ہے، معاہدات کی بات کریں، ملکیت حاصل ہو چکی ہے، ملکیت کے حصول کے بعد رجوع کر رہا ہے مالک، رجوع کرنے کے بعد ہمیں شبہ ہو رہا ہے کہ آیا یہ لزوم باقی رہا یا لزوم باقی نہیں رہا، کیا کریں گے؟ اصالت اللزوم جاری کر کے ملکیت جو حاصل ہوئی تھی وہ برقرار رکھیں گے۔ دوسری صورت وَقَضَى لَوْ شُكَّ فِي أَنَّ الْوَاقِعَ فِي الْخَارِجِ، متعاطیین نے لین دین کیا، متوجہ ہیں، متعاطیین نے لین دین کیا، قصد تملیک کے ساتھ لین دین ہو گیا ہے، خارج میں ایک چیز واقع ہوئی ہے، حل ہوا العقد اللازم، کیا یہ عقد لازم ہے یا عقد جائز ہے؟ ہمیں یہ پتہ نہیں ہے، یعنی متعاطیین نے لین دین کر لیا ہے مگر آیا یہ عقد جائز ہے یا عقد لازم ہے؟ اگر عقد لازم ہے تو فسخ نہیں کر سکتے، رجوع نہیں کر سکتے، اور اگر عقد جائز ہے تو رجوع کرنے کا، فسخ کرنے کا اختیار پایا جا رہا ہے۔ تو یہاں پہ متعاطیین نے لین دین کرنے کے بعد، بہت توجہ سنیں، متعاطیین نے لین دین کرنے کے بعد جو ملکیت کے قصد سے لین دین کیا ہے، ایک شے حاصل ہوئی، مگر ہم کو یہاں پہ شبہ مصداقیہ ہے، آیا یہ عقد لازم ہے؟ اگر عقد لازم ہے تو کیا حکم لگائیں گے؟ فسخ نہیں کر سکتے، رجوع نہیں کر سکتے۔ یا یہ عقد جائز ہے کہ اگر عقد جائز ہے تو فسخ کر سکتے ہیں، واپس لے سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کی مثال صلح بلا عوض اور ہبہ بلا عوض ہے۔ شارع نے کہا ہے کہ جس وقت آپ مصالحت میں کوئی چیز دے رہے ہیں، تملیک کر رہے ہیں، جس وقت آپ ہبہ میں کوئی چیز دے رہے ہیں بغیر عوض لیے ہوئے، تب بھی آپ تملیک کر رہے ہیں، دونوں میں تملیک ہے نا، مگر فرق یہ ہے کہ شارع کی طرف سے یہ حکم ہے، کنفرم حکم ہے کہ اگر صلح بلا عوض ہے یا ہبہ آپ نے رشتہ دار کو کیا ہے تو کیا ہے؟ یہ لزوم ہے، صلح بلا عوض لزوم ہے، یا ہبہ اگر آپ نے رشتہ دار کو کیا کیا ہے؟ لزوم ہے۔ یہ عنوان ہم کو معلوم ہے، یہاں پہ مصداقیہ شبہ ہے، حکمیہ شبہ نہیں، حکم ہمیں معلوم ہے۔ دوبارہ سنیں اس کو، اگر مصالحت کی جا رہی ہے، کوئی چیز دی جا رہی ہے اور مقابل میں کوئی عوض نہیں دیا جا رہا ہے، جھگڑا ہوا تھا، آپ نے کوئی چیز دیا، اس معاملے کو پرچہ کرنے کے، کلیئر کرنے کے لیے مصالحت کی، کوئی چیز دی، مقابل میں کچھ لیا نہیں ہے، شارع نے کیا حکم لگایا ہے کہ صلح بلا عوض لزوم لاتی ہے، یعنی وہ ملکیت لزوم ہے،
लाजिम होगी, सुलह की बात हो रही है। सुलह में अगर लेन देन किया, मुसालहत की है और बिला एवज की है, मुसालहत हो गई, ये क्या है, लुजूम आएगा। मगर हिबा, अगर आपने बिला एवज किसी को कोई चीज दी है बिला एवज, तो इस सूरत में शारे ने ये हुक्म लगाया है कि ये मिल्कियत उसकी क्या है, मुतजल्जिल है, जायज है, आप इसे वापस ले सकते हैं। जी। या दूसरी मिसाल, मसलन आपने हिबा किया है, किसको दिया है, रिश्तेदार को। रिश्तेदार को सिले रहम के उन्वान की वजह से ये जो आपने हिबा किया है, मिल्कियत यहाँ पे लाजिम हो जाती है। तो चूंकि यहाँ पे हमको हुक्म शरई मालूम है, दो जगह अभी जो हमने मिसाल दी उसके एतबार से, दो जगह मिल्कियत लाजिमा और एक जगह मिल्कियत मुतजल्जिला है। अगर हिबा गैर मुअव्वज़ा, गैर रिश्तेदार को है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, मिल्कियत मुतजल्जिला, आपको रुजू करने का हक हासिल है। लेकिन अगर मुसालहत बिला एवज की है, या हिबा आपने दिया है रिश्तेदार को, माँ बाप भाई बहन रिश्तेदार जो करीबी होते हैं, यहाँ पे शारे ने हुक्म लगाया किस चीज का, लुजूम का। वाज़ेह है, इस इबारत को पढ़ते हैं। वकज़ा, अगर आपको शक हो कि मामला तो वाक़े हुआ है, अब आप मुआतात में आ जाइए। मुआतात में मामला तो हुआ है, मामला में भी कस्द तमलीक के साथ मामला हुआ है, शक कर रहे हैं कि ये जो मिल्कियत हासिल हुई है मुताआतिया इनको, ये मिल्कियत लाजिमा है या मिल्कियत जायज़ा है। कह रहे कि वकज़ा, यही सूरत रहेगी। आप वहां पे मिल्कियत चूंकि हासिल हुई है और आपको शक हो रहा है लाजिम और तसलजुल में, असालतुल लुज़ूम जारी करके उसको लाजिम मानिए। बात वाज़ेह है ना, यानी फला इश्काल, ये किस चीज में, असालतुल लुज़ूम जारी करने में, यानी वो मिल्कियत जो मुआतात के जरिए से क़स्द तमलीक के साथ हासिल हुई है, आपको बाद में शक हो रहा है कि असलन ये मौजू अक़्द लाजिम है या मौजू अक़्द जायज़ है। आप इस क्या करेंगे, आपको हुक्म शरई मालूम है कि अगर लाजिम है तो मिल्कियत है, अगर जायज़ है तो मिल्कियत की तरफ रुजू कर सकते हैं। मुआतात में लेन देन करने के बाद मिल्कियत हासिल हो रही है, आपको ये शुबहा हो रहा है या आया ये अक़्द लाजिम है या आया अक़्द जायज़ है, आप क्या करिए, असालतुल लुज़ूम करके मिल्कियत को बाकी रखिए। कसुल्ह मिन दून एवज़ वल हिबा, जैसे कि सुलह बगैर एवज के अगर मुसालिहत हो, यहाँ पे हुक्म क्या है, लुजूम का, और हिबा हो अगर बिला एवज हो तो यहाँ पे क्या है, जवाज का है। तो आपको ये हुक्म दोनों का मालूम है, यहाँ पे शुबह मिस्दाकिया अगर जहाँ पे पैदा हो रहा हो वहां पे मिल्कियत जो है उसके ऊपर से हुक्म लगाएंगे। नाम लव तदा, अब तवज्जो करें, नाम लव तदा आया, दोनों दावा कर रहे हैं। वो एक दावा कर रहा है कि जनाब इसने हमसे जो मामला किया है ये मामला सुलह का किया है, और दूसरा दावा कर रहा है नहीं नहीं नहीं, इन्होंने हमारे साथ जो हमें जो दिया है वो किस चीज का है, हेबा 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 है, हेबा का और सुलह का। तवज्जो रहे, अगर दोनों के कौल में टकराव पैदा हो जाए, एक कह रहा है कि सुलह बिला एवज है, यानी ये मिल्कियत लाजिमा मुझे हासिल हो गई है, इसके रुजू करने से मैं वापस नहीं दूंगा। वो दावा कर रहे नहीं नहीं नहीं, मैंने हिबा बिला एवज किया है, हिबा बिला एवज मिल्कियत मुतज़ल्ज़िला होती है, रुजू का हक होता है। क्या करेंगे, अगर दोनों ऐसा मुखालिफ एक दूसरे के दावा करें, तीन चार कौल है, तीन बुजुर्गों का अलग अलग कौल है, हम यहाँ जो नकल करें उस पर तवज्जो करें। ना अमला तदाया, अगर तदाइया अगर दोनों ने दावा किया है, इहतमलत तहालुफ फिल जुमलते, तीन बुजुर्गों के तीन अलग अलग कौल हैं, हम इन तीनों अक़वाल को जिक्र करेंगे और एहतमाल यह है कि क्या करेंगे, तहालुफ करेंगे। यानी क्या तहालुफ करेंगे, हलफ बर्दारी कराएंगे, कसम दिलाएंगे, जो कसम खा लेगा उसके एतबार से हम हुक्म करेंगे। अलबय्यनतु अलल मुद्दई वल मुनकिर, कैसे है वो, वल यमीनु अलल मुनकिर, सही है। तो वहां पे अगर एक मुनकिर है मुसालिहत का, दूसरा मुनकिर है हिबा का, और दोनों ने दावा ठोका है, वो कह रहा है कि नहीं, अगर दोनों के एक तरफ से एवज
हिबा गैर मुअव्वज़ा का दावा है, और एक तरफ से दावा किसकी चीज का है, सुलह बिला एवज का दावा है। तो इस सूरत में दोनों में से किससे हलफ उठाएंगे? अगर एक मुनकिर होता, एक मुद्दई होता, तो जो मुद्दई होता हम उससे कहते कि आप बैना और गवाह ले आइए, और जो मुनकिर होता उससे हम उससे कहते कि तुम हलफ उठाओ, कसम खाओगे तो उसके एतबार से हुक्म जारी होगा। यहाँ पे वो कह रहा है कि नहीं, मैं हलफ उठा रहा हूं कि हिबा है, हिबा गैर मुअव्वज़ा। दूसरा कह रहे हैं कि मैं हलफ उठाने के लिए तैयार हूं कि ये सुलह बिला एवज है। उधर से मुकाबिल की भी नफी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वो झूठ बोल रहा है और ये कह रहा है वो झूठ बोल रहा है। इस सूरत में जब दोनों तरफ से दावा हो और दोनों तरफ से इनकार हो तो तहालुफ दोनों तरफ से होगा। इंशाअल्लाह कल इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। वल्हम्दुलिल्लाह।